دوستوں، رمضان المبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور اس کے 2 عشرے آج تقریباً پورے ہو رہے ہیں۔ بہت ہی خوش نصیب ہے، بہت ہی نیک اور بہت ہی اچھے لوگ ہیں وہ جن کو آج اللہ تبارک و تعالیٰ عشرۂ اخیرہ کی اعتکاف کی توفیق دے رہا ہے۔ آج کا یہ عشرہ جو ہے جو شروع ہو رہا ہے یہ 9 دن ہوگا یا 10 دن ہوگا، 9 دن ہوگا تو بھی یا 10 دن ہوگا تو بھی اس کو عشرہ ہی یا 10 دن ہی کہے جائیں گے۔ اس وجہ سے یہ اعتکاف سنت موقعہ ہے۔ جو لوگ ہمارے پاس اس وقت مسجد میں ہیں وہ تو نیت کر لیں گروپ سے پہلے، اور وہ لوگ جو کیا ہے ابھی گھروں سے آ رہے ہیں بہت ہی مبارک ہے وہ لوگ، ان کو آتے کے ساتھ ہی ان کو یہ بتایا جائے کہ جو کام کو کرنے جا رہے ہیں یعنی اعتکاف آخری عشرے کا اعتکاف اس کا ثواب کیا ہے وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاول من رمضان ثم اعتکف العشر الاوسط في قبة تركية ثم طلع راسه وقال إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم أعتكف العشر الأوسط ثم أوتيت وقيل لي أنها في العشر الأواخر ومن كان أعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في معينة من سبيلها فالتمسوها في عشر الأواخر والتمسوا في كل متر قال فارتقت السماوات إلى وكان المسجد على عريش ووقف المسجد ووصلت أين رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهة أصل الماء والطين من سبيل 21 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اعتکاف کیا، پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، کسی چیز کی تلاش کرنے کے لیے کیا، وہ آگے پتہ چلے گا لیلۃ القدر ہے، تو چونکہ پہلے عشرے میں لیلۃ القدر نہیں ملی اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے میں پھر اعتکاف کیا۔ بزرگوں دوستوں، اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و منوالہ جو لیلۃ القدر جو قرآن پاک میں نازل فرمائی گئی ہے جو بہت ہی قیمتی رات ہے، اعتکاف کرنے والے کو اعتکاف کرنے کی برکت سے وہ مل جاتی ہے۔ اعتکاف کرنے والا عبادت کرے یا عبادت نہ کرے اعتکاف کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا ہی ہے، اس لیے اس کو پتہ چلے کہ آج لیلۃ القدر ہے اور اس نے محنت کی تو بھی، اور اگر نہیں تو بھی اس کو لیلۃ القدر کا ثواب تو مل جائے گا۔ تو اصل لیلۃ الاعتکاف جو ہے اس کا مقصد لیلۃ القدر کی تلاش کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں تلاش کی نہیں ملی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ دوسرے عشرے میں ہوگی، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ دوسرے عشرے میں بھی وہ نہیں آئی۔ لیلۃ القدر کے متعلق آپ رات کو مانتے ہیں کہ ایک رات ہے جو رمضان میں آتی ہے، رمضان میں آتی ہے، پورے سال میں آتی ہے، اس میں علماء میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سال بھر میں آتی ہے، وہ اس کبھی بھی آتی ہے، رمضان میں آئے تو ضروری نہیں، عام مطلب رمضان میں آتی ہے۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ رمضان میں آتی ہے، اور رمضان میں بھی آخری عشرے میں آئے کوئی ضروری نہیں، پہلے عشرے میں بھی آ سکتی ہے، دوسرے میں بھی آ سکتی ہے، تیسرے میں بھی آ سکتی ہے، اور تیسرا پڑھنے کا عشرۂ اخیرہ میں آتی ہے، اور عموماً 27ویں سب کو ہوتی ہے۔ میرا مختلف اس کے اختلافات ہیں۔ اگر کوئی آدمی 10 رات جاگتا ہے یا 10 رات مسجد میں گزارتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ رات اس کو مل جائے گی۔ حضرت شیخ عمر اللہ نے ہمیں بتایا کہ لیلۃ القدر کو دین میں تلاش کیا کرتے تھے، یعنی دیکھنے کے لیے کہ پولیس کا رات لیلۃ القدر تھی کہ نہیں، اس کی نشانیاں اور علامتیں وغیرہ۔ بہرحال
ان حضرات کو جو محنت کرتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے کتنا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی کہ بالغ ہوا اس وقت سے لے کر مرتے تک ہر سال جس کو لیلۃ القدر ملی حضرت شاہد نامہ وغیرہ جو خود فرمایا کرتے تھے. تو بزرگ اور دوستوں اس وقت ہمارے پاس موقع آیا ہے اور یوں سمجھ لو کہ یہ پہلی مرتبہ موقع آیا ہے اور یہ سمجھ لو کہ آخری مرتبہ ہے. اس وجہ سے سب سے پہلے تو ہمیں نیت کرنی ہے کہ میں عشرے اخیرے کا سنت اعتکاف سنت موقع اعتکاف 10 دن کا کرتا ہوں. میں 10 دن کا سنت موقع اعتکاف کرتا ہوں. اتنا کافی ہے. اور یہ کہہ کر مسجد میں پاؤں رکھ دیا جائے اور مسجد میں بیٹھ جائے مغرب سے پہلے اور اعتکاف آپ کا شروع ہو گیا. اب مسجد میں جو عبادتیں ہیں جو چاہے تم کرتے رہو اور عبادت نہ بھی کرو سو جاؤ تو بھی اعتکاف کا ہمارا جو سونا ہے تو سونے میں بھی ثواب ملتا ہے. اس لیے اس 10 دن میں جب بھی اعتکاف آئے گی لیلۃ القدر خیر من الف شہر تو وہ تمہارے نامۂ عمل میں لکھ دیں. بہرحال نیت ہو گئی. اب جو کام مسجد میں کرنا جائز نہیں ہے جو مسجد میں نہیں کر سکتے ایسے طبی کام کے لیے یا ایسے ضروری کام کے لیے مسجد سے نکلنا جائز ہے لیکن اس کے علاوہ دوسرے کاموں کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں. بیت الخلا جانا ہو مسجد سے نکل سکتے ہو. پیشاب کرنے کے لیے جانا ہو تو باہر نکل سکتے ہو. اگر ریا کا نکالنا ہو اور ریا چھوڑنے کے لیے جانا ہو تو مسجد جماعت سے باہر نکل سکتے ہو. لیکن دوسرے کسی کام کی وجہ سے اگر باہر نکلو گے تو یہ سنت موقع اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور پھر اس کی قضا کرنے تمہارے پر لازم ہوگی بات. اسی طریقے سے مسجد میں وضو کا انتظام نہیں ہے اور مسجد میں اگر وضو کرے گا تو مسجد ساتھ میں بگاڑ دے گا وہ پاک کرو. اس وجہ سے وضو کرنے کے لیے اگر باہر جانا چاہے تو مسجد سے باہر جا کر وضو کر سکتا ہے. بیت الخلا کے لیے بھی جا سکتا ہے. اگر ان کو مسجد کے بیت الخلا موافق نہیں آتے مسجد کے بیت الخلا موافق نہیں آتے اور اپنے یہاں کے کسی دوسری جگہ کے ہی موافق آتے ہیں تو اس بیت الخلا کے لیے بھی جا سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ یہ جا. بہرحال مسجد میں جب وہ پہنچ گئے تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرشتوں کے ساتھ اور جس جگہ پر پہنچے ہو مسجد وہ خیر البریہ ہے زمین میں بہترین جگہ ہے اور اس پر ہر آن اور ہر لمحے یا فرشتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. تو گویا کہ اب آپ لوگوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے لوگوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا نہیں بلکہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا فرشتوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا فرشتوں میں ہے. جب اٹھنا بیٹھنا فرشتوں میں ہوگا تو پھر اس صورت میں آپ کا درجہ یا آپ کا مقام کتنا اونچا ہوگا. حضرت تو بات کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اشرے میں انتظام کیا جس چیز کی تلاش کے لیے کیا تھا وہ چیز نہیں ملی. دوسرے اشرے میں کیا اس میں بھی نہیں ملی. پھر دوسرے اشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرنے میں اکیلے نہیں تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے امتی صحابہ کرام ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف. اس وجہ سے اگر کوئی آدمی آج اعتکاف کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے دوست ابا وغیرہ کے ساتھ میں ہوتے ہیں تو یہ جائز ہے درست. یہ منع نہیں یہ مجلس نہیں یہ کیا ہے ہالیڈے کیمپ نہیں. لوگ مذاق اڑاتے ہیں یہ تو ہالیڈے کیمپ کر رہے ہیں مذاق اڑاؤ. اللہ تمہارے بتانا کیا جب جائیں گے اس لوگ پتہ چلے گا کہ ہالیڈے کو کیا ہوتا ہے اور
अशरे में सहाबा से कहा कि भाई मैंने जिस मकसद के लिए एहतिकाफ किया था वो पहले अशरे में भी नहीं मिला, दूसरे अशरे में भी नहीं मिला, और मुझे बताया गया कि तीसरे अशरे में है, आएगा तीसरा अशरा जो आ रहा है उसमें। तो जिन लोगों ने 2 अशरे मेरे साथ एहतिकाफ किए थे वो इस तीसरे अशरे में भी मेरे साथ करेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने साथ सहाबा को एहतिकाफ करवाया। देखिए कितना बड़ा फजीलत है एहतिकाफ ने खुद भी किया, बल्कि सहाबा को भी कहा कि तुम मेरे साथ एहतिकाफ करो, तीसरा अशरा का भी और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लैलतुल क़द्र तीसरे अशरे में है और मुझे बताया गया लेकिन तुम्हें बुला दिया गया। और इतना मालूम है कि जिस रात लैलतुल क़द्र होगी उसके दिन सुबह को बारिश होगी और मैं सजदा करूँगा तो मेरी पेशानी पर, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में भी उसको क्या है एयर कंडीशन नहीं थी, बल्कि क्या है उसके बाद पूरी छत भी नहीं थी, इसलिए पानी को बारिश का पानी गिरा वो नीचे गिरा, जिस वजह से रेत और कीचड़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाक के ऊपर और पेशानी पर लगा और ये 21वीं की सूरत थी, यानी उस वक्त उस साल 21वीं शब कदर। बहरहाल असल इसका तलाश जो है लैलतुल क़द्र की वो शब कदर के लिए हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे में एहतिकाफ फरमाया और फिर दूसरे अशरे में भी फिर तुर्की हेमा से जिसमें एहतिकाफ फरमा रहे थे वहाँ सर निकाल कर इरशाद फरमाया कि मैंने पहले अशरे का एहतिकाफ शब कदर की तलाश और एहतिकाम की वजह से किया था। फिर मुझे बतलाने वाले ने यानी फरिश्ते ने बतलाया कि वो रात आखिरी अशरे में है, लिहाजा जो लोग मेरे साथ एहतिकाफ कर रहे हैं वो आखिरी अशरे का भी एहतिकाफ करें। जो मेरे साथ एहतिकाफ कर रहे हैं वो मेरे साथ आखिरी अशरे का भी एहतिकाफ करें। मुझे एक रात दिखला दी गई थी, फिर बुला दी गई, उसकी अलामत ये है कि मैंने अपने आप को उस रात के बाद भी सुबह में किचड़ में सिंचा करते देखा, लिहाजा उसको आखिरी अशरे की कातरातों में तलाश करो। रावी कहते हैं कि उस रात में बारिश हुई, मस्जिद झपकती थी चपटी, और मैंने अपनी आंखों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर कीचड़ का असर 21 की सुबह को देखा। इस वजह से अशरे अखीरा में होती है और अशरे अखीरा की कातरातों में होती है 21, 23, 25, 27, 29। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा एहतिकाफ की हमेशा रही है। मैंने बताया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा गए तो मदीना मुनव्वरा जाकर 10 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा रहे और 10 साल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतिकाफ किया। इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा इबादत एहतिकाफ और ये करना चाहिए। इस महीने में तमाम महीने का एहतिकाफ फरमाया और जिस साल विशाल हुआ है उसमें 20 रोज का एहतिकाफ फरमाया था, लेकिन अक्सर आदत शरीफा क्योंकि अखीर अशरा ही के एहतिकाफ में रही है, इसलिए उलमा के नज़दीक एक सुन्नत मौक़ूदा हुई है। हदीस के बारे से भी यही मालूम हो गया कि इस एहतिकाफ की बड़ी गल शब कदर की तलाश है और हकीकत में एहतिकाफ उसके लिए बहुत ही मुनासिब है कि एहतिकाफ की हालत में अगर आदमी सोता हुआ भी हो तब भी इबादत में वो शुमार होता है। एहतिकाफ में चूंकि आना जाना और इधर उधर एक काम भी कुछ नहीं रहते, मस्जिद से बाहर निकल ही नहीं सकता, इसलिए इबादत और गरीब खानदान की याद के अलावा और कोई दूसरा मसला भी नहीं है। लिहाजा शब कदर के कदरदानों के लिए एहतिकाफ से बेहतर कोई सूरत नहीं। जो शब कदर के कदर करना चाहते हैं, शब कदर के आशिक हैं, शब कदर की नेमतों का हासिल करना चाहते हैं, उनको चाहे तो क्या है एहतिकाफ करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सारे रमजान में इबादत का बहुत ज़्यादा एहतिमाम और कसरत फरमाते थे, लेकिन आखिरी अशरे में कुछ हद ही नहीं रहती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान आते ही बहुत इबादत में मसरूफ हो जाया करते। वैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो रमजान के अलावा भी शव्वाल, जिक्र और इसके अलावा रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, मुहर्रम, सफर
पूरा दिन अल्लाह की इबादत में लगाते हैं। हमारी तरह नहीं कि जब कोई बड़ा मुबारक दिन आ गया तो मस्जिद भर जाती है, और जब वो मुबारक दिन चला गया तो फिर खाली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रोजाना हर इबादत में खूब करते, लेकिन रमजान में जब रमजान आ जाता था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर और ज्यादा बढ़ जाए। और जब रमजान में भी आखिरी अशरा आ जाता था तो आखिरी अशरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत रमजान में बहुत बढ़ जाती, रात रात भर इबादत करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने माफ कर दिया, कोई गुनाह नहीं, जन्नत में बहुत ऊंचे दर्जे पर, लेकिन इसके बावजूद रमजान के आखिरी अशरे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब मेहनत करते थे। अभी हदीस आएगी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि रमजान के आखिरी अशरे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर कस लेते थे। हम भी पढ़ना था जमाने में बोल रहे कमर कस ली, कमर कस लेने का मतलब ये है कि इज़ार या लुंगी जो पहनी है उसको अच्छी तरीके से बांध लें, इसलिए जब बहुत काम करना है तो वो ढीला न पड़ जाए इसमें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरे अखीरा में कमर कस लेते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि अशरे अखीरा में औरतों के पास भी नहीं आते थे, अल्लाह की इबादत में लगे हुए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक होने के बावजूद इतनी मेहनत करते हैं, तो हम तो सदापा खताकार हैं, गुनहगार हैं, हमें अपने सफाई के लिए मेहनत और कोशिश करनी चाहिए कि नहीं? और अगर करनी चाहिए तो फिर कब? और ये रमजान आ गया और इसका आखिरी अशरा भी आ गया, तब भी अगर हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अशरा में बिल्कुल भी जगह से जिसमें इत्तिकाफ फरमा रहे थे सबसे बाहर सर निकाल कर इरशाद फरमाया कि मैंने पहले अशरे का इत्तिकाफ शब कदर की तलाश और एहतमाम की वजह से किया था, फिर मुझे किसी बतलाने वाले ने या परिश्रम बताया कि वो रात आखिरी अशरा में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा इत्तिकाफ की हमेशा रही है और इस महीना में तमाम महीने का इत्तिकाफ फरमाया। और चूंकि जिस साल बेसाल हुआ है उस साल में 20 रोज का इत्तिकाफ फरमाया था, लेकिन अक्सर आदत शरीफा चूंकि आखिर अशरे के इत्तिकाफ में रही है, पिछले उलमा के नजदीक सुन्नत मौक़ूदा हुई है। हदीस से बाला से ये भी मालूम हो गया कि इस इत्तिकाफ में बड़ी गल शब कदर की तलाश है। और हकीकत में इत्तिकाफ उसके लिए बहुत मुनासिब है कि इत्तिकाफ की हालत में अगर आदमी सोता हुआ भी हो तभी वो इबादत में शुमार होता है। एहतिकाफ में चूंकि आना जाना इधर उधर काम भी कुछ नहीं रहते, इसलिए इबादत और करीब मामला की याद के अलावा और कोई मशगला भी नहीं रहेगा। लिहाजा शब कदर की कदर जानने के लिए एहतिकाफ से बेहतर कोई सूरत नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो तो सारे रमजान में इबादत में बहुत ज़्यादा एहतमाम और कसरत फरमाते थे, लेकिन आखिरी अशरा में कुछ हदी नहीं रहती थी। रात को खुद भी जागते और घर के लोगों को भी जगाने का एहतमाम फरमाते थे, जैसा कि सही की मुताबिक रिवायत में मालूम होता है। बुखारी मुस्लिम की एक रिवायत में हज़रत आयशा फरमाती है आखिरी अशरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुंगी को मजबूत बांध करते थे और रातों को हल्का फरमाते, रात को पूरी रात बिता लेते और अपने घर के लोगों को भी जगाते। लुंगी मजबूत बांधने से कोशिश में एहतमाम की ज्यादा से भी मुनासिब होती है और वीडियो से बिल्कुल या एहतजाज से मुनासिब सकता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि वो एक मरतबा एहतिकाफ में मुअतकिफ गुनाहों से महफूज रहता है और उसके लिए नेकियां उतनी लिखी जाती है जितने करने वालों के लिए। इस हदीस में एहतिकाफ का क्या फायदा है? कहीं तो भी
तलाश है। दूसरा ये बताया कान अपने रहते कहाँ पे हो या को अजनो वो ये तो नहीं रहो बिना रास्ता कहाँ पे अगर कोई आदमी एहतिकाफ करता है, एहतिकाफ की वजह से गुनाहों से हिफाजत होती है, मस्जिद में रहता है, इस वजह से बहुत सारे गुनाहों से उसकी हिफाजत हो जाती है। गिबत से भी अगर बचना चाहे गिबत से भी बच सकता है, बदनजरी से भी बच सकता है, और दूसरे गुनाहों से भी बच सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि मुतअद्दिब गुनाहों से महफूज रहता है। तो एक फायदा तो ये हुआ कि 10 दिन महीना जो भी हो गुनाह से सबसे पहला रमजान हज़रत शेख का दूसरा रमजान था, हज़रत शेख का दूसरा रमजान था, वो हमारा पहला रमजान। और उस 30 दिन जो एहतिकाफ में पूरी तरीके से गुजारे तो वाकई में इतना अच्छा लगा कि पूरे महीने में कोई गुनाह कबीरा ही नहीं किया। तो वहाँ कैसी अच्छी जिंदगी जो हमको इस वक्त रमजान में जीवित कर सकती। तो इस वजह से हज़रत शेख फरमाते हैं कि एहतिकाफ की वजह से गुनाहों से हिफाजत हो जाती है, वरना बसा औकात कोताही और नफसी से कुछ असबाब ऐसे पैदा हो जाते हैं कि उसमें आदमी गुनाह में मुब्तला हो ही जाता है। और ऐसे मुतबरक वक्त में मासियत का हो जाना किस कदर जुर्म अधिक है। एहतिकाफ की वजह से उससे अमन और हिफाजत रहती है। एक दूसरा फायदा एहतिकाफ कि एहतिकाफ की वजह से जो काम हम नहीं कर सके या जो काम हमने नहीं किया, अल्लाह जल्ल जलालहू वो मनवा लो। फरिश्ते को फरमाते कि इस मेरे बंदे ने एहतिकाफ की वजह से ये काम नहीं किया। अगर एहतिकाफ नहीं होता तो जरूर ये करता, अल्लाह को तो मालूम है, तो दिलों के भेद को भी लगता है। इसलिए फरिश्ते को कहता कि अगर ये एहतिकाफ में न होता ये करना, एहतिकाफ की वजह से उसने नहीं किया, एक फरिश्तों मेरी तरफ से उसने ये नेक काम नहीं किया है, फिर भी उसके नामा अमल में नेकियां लिखो, उसके नामा अमल में नेकियां। कितनी बड़ी फजीलत है एहतिकाफ। मसलन एहतिकाफ में जनाजे में आप जा नहीं सकते, जनाजे में नमाज नहीं जा सकते। इसी तरीके से कोई दूसरे गरीबों को मदद करने के लिए नहीं जा सकते। एहतिकाफ किया है महीने का या 10 दिन का, तो नफल गुस्ल करने के लिए नहीं निकल सकते। जुमा का गुस्ल आएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा फरिश्तों को, फिर फरिश्तों ये मेरा बंदा हर जुमा को गुस्ल करता था, जब भी मौका होता था, जो भी काम होता था, तो सारे काम को छोड़कर क्योंकि जुमा का गुस्ल सुन्नत है, इस वजह से गुस्ल करता है। लेकिन आज एहतिकाफ में है और एहतिकाफ में सुन्नत गुस्ल के लिए निकल नहीं सकता, इसलिए वो नहीं निकलेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो आदमी जुमा के दिन गुस्ल करे और गुस्ल की वजह से उसको जो सवाब मिले, इस आदमी को एहतिकाफ करने वाले को बगैर गुस्ल के उसका कितना सवाब दे दो। इसलिए एहतिकाफ नहीं होगा तो जरूर गुस्ल करता, क्योंकि अल्लाह तबारक का कितना बड़ा फजल है। नेकी हमने की नहीं, अमल किया नहीं, लेकिन जो एक अमल की आदत थी अल्लाह को मालूम है, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब बराबर करता है। जैसा कि जनाजे की शिद्दत और इसी तरीके से मरीज की इयादत करना, बीमार है उस बीमार को उसकी करना मौका नहीं है, वरना पता था कि भाई बीमार कुर्सी का बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा सवाब है। आज हम लोगों ने बीमार कुर्सी को छोड़ रखा है। हम लोग अपने खास और खास आदमी के अलावा किसी दूसरे की बीमार कुर्सी नहीं कर रहे। हालांकि
दूसरे मुसलमान पर है कि वो बीमार हो तो उसकी बीमार पूरी की जाए और बीमार पूरी में बहुत सवाब मिलता है। हम लोगों ने तो छोड़ रखा है, लेकिन हमने यूके में देखा कि वहां के लोग पोप और पादरी होते हैं, वो इस दुर्गत को अदा करने के लिए अस्पताल में जाते हैं। हर बेड पर जाकर, चाहे वो मुसलमान हो गए मुस्लिम हो, बेड पर जाकर वो उससे पूछते हैं कैसा है, क्या है, गॉड ब्लेस यू, वरी वरी जैसे बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे यहाँ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इयादत को सुन्नत करार दिया और इयादत को तो अच्छा अमल करार दिया। हजारों फरिश्ते दुआ करते हैं, लेकिन हमने इयादत के अमल ही को छोड़ दिया। बहरहाल यहाँ पर ही बताया गया कि मरीज की इयादत वगैरह ऐसे उनके एहतिकाफ में बैठ जाने की वजह से मोहतसिब उनको नहीं कर सकता, इसलिए एहतिकाफ की वजह से जिन इबादतों से रुका रहा उसका अजर बगैर किए भी मिलता रहेगा। अल्लाह इस कदर रहमत और फैयादी है कि आदमी एक इबादत करे, एक इबादत करे और 10 इबादतों का उसको सबब मिले। इयादत का भी सबब मिलेगा, दुआओं की गुज़र का भी सबब मिलेगा, और क्या है दूसरे भी कसम तफसील के साथ सुने। तो ये एक इबादत ऐसे काम की है, लेकिन दूसरी कई इबादतों को साथ में सबब मिलता है। किस कदर रहमत और फैयादी है, एक इबादत आदमी करे और 10 इबादतों का सबब मिल जाए। दरअसल अल्लाह की रहमत नेकियां देने के लिए बहाना ढूंढती। अल्लाह तबारक व तआला हमको नेकियां देने के लिए बहाना ढूंढते हैं कि चलो कोई सी भी बहाने से नेकियां इनको मिल जाए, लेकिन हम है बहाने नेकियों के मोहताज होने के बावजूद नेकियों को लेने की तरफ हम मुतवज्जे नहीं होते। हकीकत में अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है, थोड़ी सी तवज्जो और हम से दुआदार करती है। बहाना मीदा बेबहाना मीदा, मगर हम लोगों को दरअसल उसकी कदर ही नहीं, जरूरत ही नहीं, तो तवज्जो कौन करे और क्यों करे कि दीन की वक़्त हमारे कुलूब में नहीं। उसके अल्ताफ तो आम है शहीदी सफर, उसके अल्ताफ तो आम है शहीदी सफर। अल्लाह तबारक व तआला रहम करना चाहे, करम करना चाहे, वहाँ कोई लेबल नहीं है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये मुझे दुनिया में जो लेबल लगा रखे हैं वहाँ कोई लेबल नहीं। वहाँ तो अल्लाह तबारक व तआला ने सब करने बराबर है। उसके अल्ताफ तो आम है शहीदी सफर। तुमसे क्या जिद थी, अगर तू किसी काबिल होगा, अगर तेरे अंदर कबूलियत होती, तेरे अंदर काम करने की सलाहियत होती, तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे भी अता करते। इस वजह से अपने अंदर कमाल पैदा करो और जो है दूसरी भी हदीस आ रही है, लेकिन वो लंबी हदीस है। और फिर इसके बाद ये है कि जैसे कि मैंने अभी बताया, कभी नए हजरात भी आने वाले हैं, वो भी आएंगे, वो भी नियत करें। और हमारे पुराने हजरात जो है जिन्होंने 2 अशर की नियत की थी या 1 अशर की नियत की थी, वो अशर खत्म हो रहा है, उनको भी नए सिरे से 10 दिन के एहतिकाफ की नियत करनी होगी। तो नियत भी करें, दुआ भी करें कि अल्लाह तबारक व तआला ये जो खैरी अशर बाकी रह गया है, अल्लाह तबारक व तआला उसके इबादत करने की हमें तौफीक अता फरमाए, शौक़ अता फरमाए, शौक़ अता फरमाए और पूरी रात इबादत करने की हमें तौफीक अता फरमाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात बिताए। तो ये दूसरी बात है कि हम कमज़ोर हैं, अपनी हालत को देखना चाहिए। पूरी रात अगर हमसे न हो तो कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करो कि अकेली ये 10 दिन इबादत में गुजरे। पहला अशरा, दूसरा अशरा चलो गुजर गया, लेकिन ये तीसरा अशरा ये गुजर तो जाएगा, हर कोई रसूल गुजरेगा, लेकिन गुजरेगा इंशाअल्लाह हमारी मग़फ़िरत के साथ, गुजरेगा सबे कदर की इबादत के साथ, गुजरेगा कुरान पाक की तिलावत के साथ, गुजरेगा हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के साथ इंशाअल्लाह। इस वजह से यहाँ जो लोग एहतिकाफ कर रहे हैं, जो 10 दिन का एहतिकाफ कर रहे हैं, उनके लिए तो है ही, लेकिन अगर कोई रात भर भी रहना चाहता है, बेदार रहना चाहता है और वो अगर यहाँ आना चाहता
साहब कह रहे हैं कि उसको बिल्कुल खाने की इजाज़त है, अपना बचाने की जरूरत नहीं है, यही खाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने इंतजाम दिया है और खा सकते हो, इबादत करो और खाओ। लेकिन जो एहतिकाफ कर रहे हैं वो पूरा एहतिकाफ करे, बातचीत न करे और दूसरी जब बात बताया भी जाएगा। फिर हदीस को नियत करने की ज़रूरत है, दुआ करने की ज़रूरत है, नियत भी करें और दुआ भी करें। और जिन लोगों को भी अशर अखीरा में एहतिकाफ में बैठना है वो जल्दी करें, जल्दी से जल्दी सूरज शुरू होने से पहले मस्जिद में पहुँच जाए। 15-20 मिनट बाकी है, जल्दी से आ जाओ। अल्लाह मुझे और आपको रमज़ान के आखिरी अशरे का देखा नसीब फरमाए और रमज़ान में इबादत करने के साथ अल्लाह फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैह। एक मसला है, किसी को एहतिकाफ की दिनों में एक्सरसाइज करने की आदत है, उसका क्या? वो जो रोजाना एक्सरसाइज करने की है वो इसकी इजाज़त नहीं है।